20 people have now been arrested in connection with stone pelting and clashes in Delhi's Jahangirpuri yesterday. Police have registered cases under various sections, including rioting and attempt to murder and under the Arms Act. Now, new videos have emerged purportedly showing how the Jahangirpuri riots in Delhi began. One video shows procession with swords, the other stone pelting at the procession. Let's go across to Sukirti Dwivedi to understand more of this. Sukirti, what more details can you share with us? Well, Rohit, the update is that while 14 people had been arrested earlier, 6 more people have been arrested now, so taking the total number of arrests to 20 now, and 2 juveniles have also been detained as of this moment. So far, the Delhi police has arrested people from both communities. The allegations are against both sides, while the Muslims allege that the Hindu procession, while it was passing from the sides of the mosque, they increased the volume of the loudspeakers. They tried to vandalize the mosque, and it is only in retaliation that they responded. The people who were part of the procession, however, have been alleging that while they were passing next to the mosque, the other community started pelting stones at them without any kind of provocation from their end. And when the stone pelting and the number of people from the other side increased, that's when the people from the procession also retaliated. Now videos have emerged where members of the procession are seen hailing swords, but the members of the procession that we'd spoken to in the morning said that yes, some of them did carry swords. However, those were never used to inflict any kind of violence on anyone. On the other hand, there have been shooters from the other side, 2 of which have already been identified by the police. One of them was shooting at a sub-inspector who received a bullet injury in his arm. He's already been arrested. The other shooter has also been identified. The police is on the lookout for him, and it is expected that he too will be arrested soon. So there are claims and counter-claims in this entire episode. However, the good part at this point of time is that the police has managed to nail down at least 20 of those culprits, and their investigation is still ongoing. They're still going through more CCTV evidence of the entire episode to identify more people. All right, Sukirti Dwivedi, thanks very much for joining us with those details. And this is what, in fact, Union Minister Anurag Thakur said. Listen in. देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। And the Delhi police have said that all CCTV footage, videos, human intelligence, everything is being investigated. जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं। सारा मसला इन्वेस्टिगेशन का है। अभी हम लोग लेट अस नॉट जंप टू द एनी कंक्लूजन। जो जिस सरगने की बात जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। और जो दूसरा असलम जिसके गोली चलाने की बात आई है और जिसके पास से जो अवैध वेपन निकला है, उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट मारपीट का पिछले वर्ष का आया। सकीना जी, ये बताइए कि आपके पति जो हैं वो कल बाहर, जब ये शाम को ये सब हो रहा था, यात्रा निकाली जा रही थी, तो क्या वो बाहर गए थे और उन्होंने आके आपको कुछ बताया कि बाहर क्या हुआ उनके साथ? कल मेरा पति गया था वजीराबाद, लैपटॉप लाने गया था, तो वहाँ से आके मुझे कह रहा, तब बजा 6:30 बजा चुका था, तो मुझे कह रहा मम्मी खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगे। इतना में मैं ऊपर खाना निकालने गया तो देखूँ तो बाजार से फ़ोन आया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बहुत मारामारी हो रहा, आप आ जाओगे तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। तो जैसा मैं खाना नीचे लेके आ गया, तब तक देखूँ तो यहाँ तक पहुँच चुका था। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कह रहा मोनी खाना ढक के रख दो, बहुत लड़ाई हो रहा, अगर मैं ना जाऊँगा ये लोग आपस में मर जाएगा। अगर मेरा पति अगर
देखो गया तो ये लोग एकदम प्लानिंग करके ही आया। सुबह से 3 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं, 2 बार निकल चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। पहले तीसरा बार में ये लोग क्या करा, रमजान का टाइम था, वो रोजा खोलने का टाइम था, ये लोग मस्जिद के सामने जाके इतना बवाल मचाया। तो उन्होंने कहा ये भी रोजा खोलने का टाइम है, थोड़ा स्लो कर लो। तो यही बात लेके हाँ बहुत हाँ, तो देखो तुमने 2 बार जा चुके, हमने कुछ नहीं बोले, सब सुबह से आराम से दोनों मतलब अच्छा से गया। फिर मैंने जब मस्जिद का सामने जैसा चला गया तो वहाँ पर सब जने 4-5 जने बोला भाई देखो तुम लोग सुबह से गए, हमने कुछ भी नहीं बोले, अब रोजा खोलने का टाइम हो गया तो आप लोग जाओ, थोड़ा स्लो कर लो। लेकिन ये लोग पूरा सामान का साथ तैयारी होके आया कि अब यहाँ पर हम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। तो इसीलिए तो हमारा हस्बैंड जाके मतलब छुड़ाने गया तो उसी को दोषी ठहरा गया। वो तो अच्छा के लिए गया, हाँ उसको बोतल लगा, पुलिस वाला भी देखा उसको बोतल लगा, लेकिन वही लोग क्यों दोषी ठहराया, वो तो अच्छे के लिए गया था। हम आप बताएं, आपके पड़ोसी हैं अंसार जी, उनको पुलिस ये कह करके गिरफ्तार करके ले गई है कि उन्होंने ही सारे दंगे भड़काए, उन्होंने ही जाके बाहर बहस शुरू की, 3-4 लोग अपने साथ भी लेकर के गए थे और उन्होंने ही सारा लड़ाई झगड़ा करवाया। आप कितने साल से पड़ोसी हैं उनकी, और इस तरह के जो आरोप हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उनको 11-12 साल हो गए यहाँ, मगर यहाँ तो मेरे को हमारी गली में तो उन्हें आज तक दंगा नहीं किया था। और मतलब गली के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मगर कोई परेशानी होती है तो वो साथ देते हैं, हमारा भी साथ आधी रात देते हैं, हमारे साथ तो वो अच्छा करते हैं, पूरी गली के साथ अच्छा करते हैं। ये भी बोल रही हैं ये नहीं कि यहाँ बेटी को बेटी मानते हैं, हमारी बेटी है, अपनी बेटी की तरह मानते हैं वो।